ಸೇವೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕರ ಕೆಜೆ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಸದಾ ನಿಮಗಾಗಿ ಸೇವೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಚೇರಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡಿನ ಜನತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯ ನಾಯಕರು ಕೆಜೆ ಜಾರ್ಜ್ ಸಾಹೇಬರು ಈ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯರು, ಪಾಸ್ವಾನ್ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಉಬೇದುಲ್ಲಾ ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬರು, ನಾನೇನೋ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ರೆ ತಾವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ತಮಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡಿನ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ ಶ್ರೀ ಉಬೇದುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬರವರು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಹೆಸರಾಗಿ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಇರೋರ್ಗೂ ನಿಮಗೆ ಚಿರ ನಿರ್ಮಣಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಜನ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಲೀಮವರು ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನೋ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು 1990 NSUI ಸೇರಿದ್ದವು. ನಾನು ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬರು NSUI ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು. 1990 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು NSUI ಸೇರಿದವನು. ನಾನು NSUI ಅಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ DSS ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವನು ನಾನು. ಹಾಗಾಗಿ NSUI ಸೇರಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ DCC KPCC ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಕೆಜೆ ಜಾರ್ಜ್ ಸಾಹೇಬರು 2010 ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಾಗವಾರ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿಗೆ BBMP ಸದಸ್ಯರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಪಕ್ಷದಿಂದ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಟ್ರು.
ನೋಡಿ ಕಲೀಂ ಪಾಷಾ ಅವರು ಇರ್ಷಾದ್ ಬೇಗ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೀಡರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಫೀಸನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇದೆ ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವ್ರು ಇದನ್ನು ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. हमारे नौजवान साथी कलीम पाशा और उनकी अहलिया इरशाद बेगम साहिबा जो तकरीबन 10 साल यहाँ की काउंसलर रही, उन्होंने आज एक यहाँ ऑफ़िस का इफ्तिताह किया है। ये ऑफ़िस जो है यहाँ लोगों के मसाइल को हल करने के लिए ओपन की गई है। मैं समझता हूँ कि इन्होंने पिछले 10 साल में जो खिदमत अंजाम दिए हैं उसको देखते हुए लोगों का ये डिमांड था कि इस गोविंदपुर में जो है मेन रोड पर एक ऑफिस हो जाए और इन्होंने इस ऑफिस को आज इफ्तिताह किया है। जहाज साहब यहाँ आए थे। मैं समझता हूँ इस ऑफिस से जो है इस मोहल्ले के, इस इलाके के, इस वार्ड के लोगों की काफ़ी खिदमत होगी। जो भी रोज़ाना लोगों को मुश्किलात पेश आते हैं, वो वाटर पानी का मसला हो, इलेक्ट्रिसिटी का मसला हो या सैनिटरी का मसला हो या कुछ भी हो, राशन कार्ड हो, तो उसके लिए जो है मोहतरमा इरशाद बेगम साहिबा और कलीम पाशा जो है मिलकर ये तमाम मसाइल को हल करेंगे। इस ऑफिस से इस इलाके के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। सर ये अभी इससे पहले हमारी जो एक्स BBMP कॉर्पोरेट ऑफिस थी वो इब्राहिम साहब स्ट्रीट में थी। वहाँ क्या हुआ, मेट्रो का काम चल रहा है और वहाँ के लैंडलॉर्ड हमारे सिराज भाई वो ऑफिस की वो घर की ज़रूरत रहने की वजह से उन्होंने हमने शिफ्ट करो, खाली करो बोले। अब खाली करना चाहिए ना। अब हमें 10 साल वहाँ पर ऑलमोस्ट हमारे पूरे टर्म, हमारी वाइफ इरशाद बेगम का टर्म है वहाँ थी हमारे ऑफिस से। वो ऑफिस में हमें पूरे एरिया के कंप्लेंट्स सुनते थे, ये लोगों के आवाम के कंप्लेंट सुनते थे। हमारी ऑफिस का जो नंबर है पूरे वार्ड के आवाम के पास है, उन्होंने कंप्लेंट से फ़ोन करते थे। हमें कंसर्न डिपार्टमेंट को फ़ोन करके हमें कंप्लेंट से अटेंड कराने की पूरी भरपूर कोशिश करते थे। उसके साथ साथ वो ऑफिस में विडो पेंशन रहते और सीनियर सिटीज़न का जो पेंशन रहता है और हैंडीकैप का पेंशन रहता है और स्टेट गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो पूरे स्कीम्स आवाम तक प्रोवाइड कैसा कर सकते हैं, उनके घरों तक कैसा पहुंचा सकते हैं, उसके ऊपर पूरा हमें जोर लगाते थे, वहाँ पर काम करते थे। और उसके साथ साथ आधार कार्ड बनाना, उसे सपोर्ट करना, डॉक्यूमेंटेशन बनाने के वास्ते उनको लीगल पूरा सपोर्ट करना, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह। जो नॉर्मल जो आदमियाँ हैं जिनको मालूम नहीं रहता वो आदमियों को सबको हमें ऑफिस को कांटेक्ट करके आते थे, हमें बनाते थे। अब वहाँ ऑफिस ये कोरोना के बाद आने के बाद, उसके बाद कोरोना फर्स्ट सेकेंड ये सब, उसके बाद और बहुत सारे बीच में कई पॉलिटिकल हालात ख़राब होने के बाद वो ऑफिस को मैं वहाँ पर बंद करे थे हमें ऑफिस से। वो सेम ऑफिस यहाँ पर हमें गोविंदपुर मेन रोड में सभी सागर होटल के बाजू, रोशन लायर साहब की ऑफिस के बाजू, मतलब APJ अब्दुल कलाम मेन रोड में हमारी ऑफिस, हमें एक छोटी ऑफिस यहाँ स्टार्ट करें। ये ऑफिस का मकसद है आवाम को वेलफेयर जो स्कीमा ही वो पूरे स्कीमा पहुँचाना, उनके घरों तक पहुँचाना। जो ज़रूरतमंद है उसे गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स हैं वो उन तक पहुँचना। उसके बाद हमारे से जो बन सकता है एजुकेशन सेक्टर में, मैक्सिमम एजुकेशन सेक्टर में ये हमारी जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी के साथ साथ इंसानियत की खिदमत, जिनको भी ज़रूरतमंद है उनको एजुकेशन सेक्टर में हमारे ऑफिस से फ़ायदा पहुंचना, ये हमारा ये ऑफिस का मकसद। आप 4 साल आए थे, उनके ख्यालात, आपके ख्यालात आप क्या जाहिर करेंगे? सर अभी देखो हमारे पास यहाँ कांग्रेस की वार्ड ऑफिस वार्ड में नहीं है, काम ही है नहीं है, तो हमें आज इसे क्या करें, ओपनली डिक्लेयर करें ये कांग्रेस की एक्स BBMP कॉर्पोरेटर की ऑफिस के साथ साथ कांग्रेस की वार्ड ऑफिस बोल को आज ऑफिशियली डिक्लेयर करें। वो डिक्लेयर करने के वास्ते हमें क्या करें बोले तो आज जार साहब को बुलाए, हमें जार साहब आए, ये ऑफिस का इनाग्रेशन करे, कांग्रेस का बाहर फ्लैग हास्टिंग करे। उसके साथ साथ हमारे KPCC के मेंबर, सीनियर हमारे कांग्रेस पार्टी के मेंबर
और सीनियर लीडर है हमारे सबके बड़े भाई जनाब उबैदुल्ला साहब भी हमें दावत दिया आओ उनको उन्होंने भी आए और जाट साहब के साथ उबैदुल्ला साहब के साथ ये ऑफिस की आज इनाग्रेशन कराए। मकसद हमारा एक ही क्या है बोला तो हमारी ऑफिस यहाँ कांग्रेस की ऑफिस है, कांग्रेस की ऑफिस के थ्रू जो भी काम चलता है यहाँ से मतलब क्या होता है कांग्रेस वाले काम कर को दे रही, ये तो मैसेज जाता है। तो यहाँ से जो भी काम करते हैं वो कांग्रेस पार्टी को बेनिफिट होता, वो कोई कारपोरेटर को बेनिफिट हो सकता या एमएलए को बेनिफिट हो सकता या कांग्रेस पार्टी को बेनिफिट हो सकता। कांग्रेस की ऑफिस में हमें एक नीयत के साथ, अच्छी नीयत के साथ, बगैर कोई एक्सपेक्टेशन के साथ कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा पहुंचना ये हमारा मकसद है। उसी मकसद को लेकर हमारे जार साहब भी आज यहाँ आए, उन्होंने भी बोले ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗ್ರೀವೆನ್ಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಸೇರಿಸೋ ಕೆಲಸ ಈ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ बोल गए जार साहब के हमारे ख्यालात एक ही थे, कांग्रेस दोबारा कांग्रेस को वापस नेशनल लेवल में, स्टेट लेवल में कांग्रेस को लेकर आना, कांग्रेस की मेंटालिटी वापस दे पूरे हमारे वतन में रूल करना, ये हमारा मकसद है। सर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे इससे पहले जो है आपकी ऑफिस थी, उसके बाद में आपकी ऑफिस नहीं थी और एमएलए प्रेसिडेंट कांग्रेस के हैं, लेकिन आज भी लोगों को जो है नाराज़गी है क्योंकि उनके कंप्लेंट्स पेंडिंग है। तो अब क्या इसके बाद यहाँ पर आकर लोग आपसे रब्ता कर सकते हैं? सर क्या है देखो, बेसिक सिविक सिस्टम है ना, सिविक सिस्टम में डेली क्या तो भी कंप्लेंट्स आती हैं, सैनिटरी ब्लॉक होता है, लाइट ख़राब होता है या ड्रेन ब्लॉक होता है वगैरह वगैरह वगैरह, जो डेली रोज़मर्रा के जो कंप्लेंट्स हैं वो डेली क्रिएट होती हैं। वो क्रिएट होती तो बहुत सारे आदमियों को कहाँ जाना, किधर अप्रोच करना, क्या करना मालूम नहीं रहता। बहुत सारे आदमियों को मालूम है, जैसा रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन आई, मस्जिद के जिम्मेदार आई, उन्होंने हमने कांटेक्ट करती हैं, ऑफिस में कांटेक्ट करती हैं, मगर बहुत सारी आवाम को कलीम भाई की ऑफिस, इरशाद बेगम की ऑफिस कहाँ है मालूम नहीं था। आज ऑफिशियली आज हमें अनाउंसमेंट कर को ही, आज हमें पूरी आवाम को बता को ही वार्ड की भाई तुम्हारे वास्ते, तुम्हारी खिदमत के वास्ते जो भी कंप्लेंट्स थी वो अटेंड करने के वास्ते, वो तुम्हारे कंप्लेंट्स को रेगुलरली फॉलोअप कर को, वो कंप्लेंट्स को कंप्लीट फॉलोअप कर को, वो कंप्लेंट टोटली ट्रबल शूट करने के वास्ते ये ऑफिस से तुमना फ़ायदा पहुंचता है बोल को आज डिक्लेयर कर को।